If you are able to see the PPTs, just raise your hands. Okay, thank you very much. So we'll be starting with the small prayer and going to the very important topic. Om Agyanti Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Today's topic is very, very vital because this is the basis of spiritual life. I came to Krishna consciousness in August 1998. And the way everything happened in my life, I will share my personal story and realizations with you to discover this very important topic. And the topic is how to choose a genuine guru, or in other words, who is a true master. In today's day of guided missiles in the hand of misguided men, fast food but difficult to digest, broad roads, narrow hearts, smiling faces, crying hearts, there is love at first sight and there is divorce at first fight. How many of you agree with me? Raise your hands. That we live in a very नकली world, huh? इसीलिए आधार कार्ड का फोटो और फेसबुक के फोटो में अंतर होता है, क्योंकि एक फोटो होता है दिखाने वाला फोटो इस दुनिया को, और एक होता है हमारा असली फोटो, राइट? वी ऑलवेज शो टू अदर्स आवर बेस्ट फॉर्म, and that is why in Kali Yuga, which is an age of cheating and hypocrisy, it is very important to understand who is a true master and who is a genuine guru. So how many of you are interested to know about this topic? Please give me a thumbs up so that I know that all of you are with me. Thank you very much. I'm loving the audience who are here, and the introduction is already covered by Pankaj Prabhu. And here are some of the programs which I have taken in various medical and engineering colleges. This was just during the Corona crisis. पहले क्या था? BC and AD, before Christ and after death. And now it's become BC and AC, before Corona and after Corona. Big doctors. Prabhupada says white coat and black coat. White coat is the doctor and black coat is the advocate, right? And all these degrees, for example, I'm a MBBS, MD, are actually like big zeros and nothing else, as Prabhupada says. एक zero का मतलब zero, दो zero का मतलब zero, तीन zero का मतलब zero, लेकिन उस zero के पहले अगर एक one लग जाए, तो it becomes 10, it becomes 100, it becomes 1000. So it is very important for all of you to do your prescribed duty of being a student very nicely and practice this process of Krishna consciousness, which is like adding one before the zero. So इस दुनिया में what is the truth? आप लोग बताइएगा, number one is true or number two is true? Number one is people respect you for what you are. Number two is people respect you for what you have. बताइए, एक सही या गलत या दो सही? Very good, huh? Give yourselves a big hand. You all are very attentive. I'm liking this. एक भिखारी अगर आके क्लास दे, कोई उससे सुनने नहीं वाला, कोई उसको इसलिए नहीं सुनने वाला क्योंकि वो आत्मा है, लेकिन लोग उसी से सुनते हैं जब वो देखते हैं कि इसका अथॉरिटी है, इसका डिग्री है, ये स्वयं पढ़ा लिखा है. So people in this world respect you for not what you are as a spirit soul, but for what you are or what is your degree. Now, this is a program which I took in Birla Institute of Technology for 5,000 students in the auditorium on the art of mind control. Today, we have made a lot of advancement. Ukraine and Russia, big missiles are going here and there and killing thousands of people. Can we give life? Can you make a machine in which one side you can put the grass and the milk comes from the other side? Is it possible? Yes or no? Show me with your hand movement. Is it possible? No. Because Krishna is telling in Bhagavad Gita, Aham sarvasva prabhavo matta sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvitaha. आज से 22 साल पहले मैं आप लोग की तरह एक स्टूडेंट था और अपने मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम के लिए बुलाया गया था.
And in that program, the topic was discover yourself. Now I was wondering क्या discover करने को है, मेरे को तो सब पता है. I am the body, huh? At death everything finishes, right? We have to study, we have to earn money. Science in this world answers the how of things, and spirituality in this world answers the why of things. How does a person die is answered by science. Corona, blood pressure, diabetes. Why does a person die? The answer is there in Bhagavad Gita. Antakale cha mameva smarana muktva kalevaram. तो 22 साल में मैंने दो चीज पढ़ाई की है. एक मैंने मेडिकल साइंस का पढ़ाई किया है और दूसरा मैंने स्पिरिचुअलिटी का पढ़ाई किया है. How does it rain? Answer is given by science. Evaporation, condensation and rain. And why does it rain? The answer is given in Bhagavad Gita. And this presentation is dedicated to the founder Acharya of ISKCON, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, जिसने हम लोग को जीने का ढंग सिखाया. एक मोबाइल खरीदते हो तो उसके बारे में पढ़ना पड़ता है. एक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल होता है. एक कॉम्प्लिकेटेड लैपटॉप भी खरीदते हैं तो उसके बारे में गूगल में रिसर्च करना पड़ता है. लेकिन ये जिंदगी जो है, आप लोग बताइए, नंबर 1 सिंपल है, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स है. प्लीज शो मी, इट्स 1 और 2. व्हाट डू यू फील? जिंदगी कैसा है, सिंपल या कॉम्प्लेक्स? थैंक यू वेरी मच, यू ऑल आर वेरी ट्रेन्ड. लाइफ इज नॉट इजी. लाइफ कोई मूवी नहीं है कि हीरो ऊपर से गिरता है तो सीधे विलेन के सर पे गिरता है. एक्चुअल लाइफ तो बहुत अलग है. जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है. दूर से देखा तो ऐसा हो रहा था, पास जाके देखा तो कुछ और हो रहा था. सो टुडेज टॉपिक इज टेस्ट फॉर अ ट्रू मास्टर. आप लोगों ने पीटी उषा का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? हाथ ऊपर कर दीजिए. पीटी उषा. आप लोगों ने हिमा दास का स्टोरी सुना है? हाथ ऊपर कर दीजिए. हिमा दास, जिसको अगेन ओलंपिक ये एक अच्छा सा मेडल मिला था फॉर रनिंग. दोस्तों, आप लोग में से कितने लोगों को दौड़ना आता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो रनिंग? प्लीज रेज योर हैंड्स. वेरी गुड. सर आप क्या पूछ रहे हैं? रनिंग इज अ सिंपल थिंग प्रभु. बट माय डियर फ्रेंड्स, एक इतना सिंपल चीज रनिंग के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है. किसी ने आपको ब्रश करना सिखाया, किसी ने आपको खाना खाना सिखाया, किसी ने आपको कपड़े पहनना सिखाया, किसी ने आपको मोजा और जूता पहनना सिखाया. Someone or the other taught you something. Training is required in every field in life. Because Hema Das was running in the fields of Assam, और एक स्पोर्ट्स कोच ने हिमा दास को देखा कि वो क्या तेजी से भाग रही है, तो उसने जाके उसके पेरेंट्स से पूछा, कैन यू गिव दिस चाइल्ड टू मी? आई विल ट्रेन हर so that she can win a medal for India. Similarly, the most important thing in life is training and getting a right teacher. That is why the importance of guru is most important in present life. ये किसका फोटो है? This photo is Krishna and Balram in Sandipuni Muni ashram, and this ashram is present in today's Ujjain, where you can go and visit the ashram, where they also, even after being the supreme personality of Godhead, they accepted a guru. Bhagavad Gita chapter 4 34th shloka. Tatvidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanas jnaninas tattvadarshina. आप लोग सब मुझे बताइए कि इस दुनिया में इंफॉर्मेशन ज्यादा है, नंबर 1, या ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा है, नंबर 2? व्हाट इज मोर, इंफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन? आप लोग गलत आंसर कर रहे हैं इस बार. नंबर 1, इंफॉर्मेशन, राइट? इट इज द वर्ल्ड ऑफ आईटी. इंफॉर्मेशन. गूगल जाइए, व्हाट्सएप जाइए, यूट्यूब जाइए, बस इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन. देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन. Bhakti is not a individual download system to the brain. Bhakti is a process of heart transformation through accessing mercy. गूगल में आप ब्रह्मांड का हर चीज को निकाल सकते हैं, लेकिन ये नहीं निकाल सकते कि हाउ कैन यू एक्चुअली बिकम हैप्पी. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? रेज योर हैंड्स.
गूगल बाबा के पास आपको हर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। उसके लिए भगवत गीता के इस श्लोक को फॉलो करना है। जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर, inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because they have seen the truth. आप लोग मुझे बताइए कि कोई भी दुकान में घड़ी कितने बजे पे रुका रहता है? अगर घड़ी में बैटरी नहीं है तो कौन सा टाइम पे घड़ी रुका रहता है? आप लोग बता सकते हैं? 10:10 तो ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भगवत गीता के 10वें चैप्टर के 10वें श्लोक में कृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। एंड व्हाट इज दैट? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। All of your students, tell me, knowledge in this world, whichever you have gained, whether it's science, mathematics, engineering, this knowledge comes from outside in or inside out? हाथ करके मुझे बताइए, ये नॉलेज बाहर से अंदर आता है कि अंदर से बाहर आता है? आप लोग सब हाथ के एक्शन से बताइए मुझे। बाहर से अंदर जाता है, वेरी गुड, आई एम लाइकिंग इट। हाँ, बाहर से अंदर। लेकिन दोस्तों एंड प्रभुज, अभी आप लोग अपने हाथ को उल्टा कर दीजिए। स्पिरिचुअल नॉलेज अंदर से बाहर जाता है, ऐसे करके दिखाई मुझे, अंदर से बाहर। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। When Krishna sees that this devotee is sincere, he gives him the intelligence from within by which he comes to me. परीक्षित महाराज के पास कितने दिन थे? हाथ करके बताइए, कितने दिन थे मृत्यु के? How many days? परीक्षित महाराज, वेरी गुड, 7 days। और आपके पास कितना दिन है? How many days you have? कोई गारंटी है क्या? परीक्षित महाराज के पास 7 दिन था और सप्ताह में भी 7 ही दिन होता है। हम लोग की मृत्यु संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे छोड़ के और कोई दिन हो सकता है क्या? यस और नो, ऐसे करके बताइए, यस और नो। संडे टू सैटरडे में ही होगा ना, राइट? सो वन वैष्णव आचार्य वाज टेलिंग दैट परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन थे, हमारे पास तो 7 दिन भी नहीं है, लेकिन उसी 7 दिन में एक दिन जाना है। युधिष्ठिर को यक्ष ने पूछा कि संसार की सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? एंड व्हाट डिड युधिष्ठिर आंसर? धर्मराज, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। इस दुनिया में सब देख रहे हैं कि वो चल गया, ये चल गया, इसको कोरोना हो गया, वो मर गया, लेकिन किसी को नहीं लगता कि मेरा नंबर भी आने वाला है। When Parikshit Maharaj was ready, Sukdev Goswami appeared. कब मिलता है आपको असली गुरु? आपको असली गुरु तब मिलता है जब आपके अंदर सच्चाई को जानने की तीव्र उत्कंठा होती है। There is an absolute necessity for a spiritual master. Sometimes when we talk about the importance of accepting a bona fide spiritual master, people tell us, why should I blindly believe? मैं क्यों मानूं आजकल के गुरुओं को? जैसा गुरु वैसा चेला हो, नरक में ठेलम ठेला, कोई जेल में जा रहा है, किसी का सेक्स रैकेट हो रहा है, कुछ हो रहा है, मैं क्यों मानूं कोई गुरु को? आप लोग के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हाथ उठा दीजिए, शर्माइए मत। थैंक यू सो मच। आई एम लविंग द ऑनेस्टी ऑफ द स्टूडेंट्स। यस, मैं क्यों मानूं सर कोई गुरु को? ये जेल जा रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये इसकी फॉल डाउन हो रही है। बट डोंट वरी, आई विल गिव यू द आंसर्स। दे थिंक, सर मैं अपनी आत्मा की सुनूं, मैं अपनी मन की सुनूं, मैं क्यों दूसरों की सुनूं? तो लेट अस सी व्हाट कृष्णा हैज टू टेल इन भगवत गीता। इस दुनिया में आप देखेंगे कि हर चीज करने के पहले थोड़ा सा तो श्रद्धा रखना पड़ता है ना। आप लोग सब कितने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं? हाथ ऊपर कर दीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स? वेरी गुड। कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले क्या कोई गारंटी था कि आप एकदम टॉपर बन के निकलोगे या हर सेशन में आप लोग पास आउट हो जाओगे और एकदम स्मूथ फ्लो होगा आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में? हाँ बताइए, गारंटी है या नहीं है? ऐसे या ऐसे? कोई गारंटी है? अरे कल की गारंटी नहीं है, 4 साल की बात की गारंटी क्या ही गारंटी होती है। जब आप लोग जाते हैं बाल कटवाने के लिए या कोई बाहर शेविंग करवाता है तो हम लोग जाके ऐसे बैठ जाते हैं ना शांति से
क्या गारंटी है कि उस तरह से आपका गला नहीं कट जाएगा? आप लोग सब ट्रेन में ट्रेवल किए हैं? अगर किए हैं हाथ ऊपर कर दीजिए। जितना बार आप लोग राजधानी एक्सप्रेस या शताब्दी में बैठते हैं, क्या आप लोग जाके इंजन ड्राइवर से पूछते हैं, अरे बराबर ले जाना, रात को ना तू सो मत जाना, एक्सीडेंट तो नहीं करा देगा तू? ना बाबा ना, मैं तो ट्रेन में बैठना ना ही। ऐसा होता है क्या? अरे भाई, कोई नई मूवी आती है वहां चले जाते हैं, कोई नया गाना आता है वो सुन लेते हैं, कोई नया रेस्टोरेंट में आता है चले जाते हैं, कोई नई लड़की जब हॉस्पिटल में या हॉस्टल में आती है तो नजर उधर चला ही जाता है। तो भक्ति में इतने क्वेश्चंस क्यों? कुछ दिन पहले मैं आपको एक ट्रू स्टोरी बताना चाहता हूं। कितने जन सुनना चाहते हैं एक सच्चा इंसिडेंट जो मेरे एक पेशेंट के साथ हुआ। एक मेरा पेशेंट आया और मेरे को बोला, डॉक्टर साहब आप इतना दवाई दे रहे हैं, कहीं मुझे साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा ना? मैंने पूछा, अरे भाई साहब आप सुबह से शाम क्या खाना खाते हैं? बोले, सर मैं तो सिगरेट भी पीता हूं, मैं तो दारू भी पीता हूं, मैं तो खैनी भी मारता हूं, सर मैं तो बाहर जाके वड़ा पाव और सब कुछ खाता हूं। मैंने बोला, सारा हेल्थ क्लास क्या डॉक्टर से ही लेना है क्या? हाँ, बाहर कुछ भी खा रहे हो और हम तुमको दवाई दे रहे हैं, तब तुमको बहुत टेंशन आ रहा है हाँ कि सर साइड इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा? अरे जो सुअर कचड़े में घूम रहा है सुबह से शाम तक, वो अगर बोले सर मेरा शरीर गंदा हो जाएगा, दिस इज टू मच, इजंट इट? हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस इज टू मच? रेज योर हैंड्स। Thank you very much. Right? Similarly, why do we ask so many questions when we come to spiritual life? It is important to ask the questions, but also it is important to put the faith in the process. हर चीज में इस दुनिया में शुरू में श्रद्धा की जरूरत है। आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, एंड दिस इज द वे लाइफ गोज ऑन। So what do we see in this world? We see that for everything, whether it's a music, athletic, karate or whatever, or running या ब्रश करना, गिटार बजाना, हर जगह ट्रेनिंग की जरूरत है। तो लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पिरिचुअलिटी में ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं है? आप लोग बताइए, अगर है तो हाथ ऊपर कर दीजिए। राइट, थैंक यू वेरी मच। Nowadays students buy study notes, cram। आजकल एग्जाम सिस्टम क्या हो गया है? मैंने आज तक कम से कम 2000 एग्जाम दिए हैं। एग्जाम मतलब कौन सबसे अच्छा ले सकता है और कौन सबसे अच्छा उल्टी कर सकता है। जो सबसे अच्छा सजा सजा के उल्टी करता है उसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलता है। अरे किसको पता एक्चुअल नॉलेज किसने गेन किया है? This education system which is happening in Kalyuga is big topsy turvy, right? जो असली चीज पढ़ाना चाहिए उसको पढ़ाते नहीं है लोग, और जो जनरल नॉलेज की बात करते हैं, इसका कैपिटल क्या है, हाँ मोहम्मद तुगलक का बेटा का नाम क्या था, हुमायूं कब गया, अकबर कब मरा, इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है? राइट? बट अगर सिखाया जाए कि लाइफ का पर्पस क्या है, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट, ये सब तो कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, लेकिन भगवत गीता पढ़ने का समय किसी को नहीं है। कृष्ण इज टेलिंग इन भगवत गीता, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आप लोग में से कितने लोगों के लाइफ में दुख है? सच सच बताइए तो। मेरे लाइफ में तो बहुत दुख है, दोनों हाथ ऊपर कर दे रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू आर ऑनेस्ट। अगर कोई व्यक्ति बोलता है सर, मैं एक बार आईआईटी कानपुर में क्लास ले रहा था, तो मैंने पूछा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ इज देयर इन एवरी पर्सन्स लाइफ, कोई है जो 100% खुश है? तो एक लड़का हाथ खड़ा कर दिया। मैं भी सरप्राइज हो गया। मैंने बोला, अरे तुमको कभी बीमारी नहीं हुआ? नहीं सर, मैं तो जिम जाता हूं, मैं तो एकदम हेल्दी हार्टी हूं सर, मेरे को तो कोई तकलीफ ही नहीं है लाइफ में। मैंने बोला, अरे भाई साहब आपको क्या सर्दी खांसी बुखार भी कभी नहीं हुई है क्या? नहीं नहीं सर, सर्दी तो लगी रहती है। मैंने बोला, क्या बहुत मजा आता है सर्दी में? हाँ, सर्दी ना तो अंदर जाता ना बाहर आता है, पूरा टाइम ब्लॉक करके हेडेक करता है। तब उसने हाथ नीचे कर दिया। नहीं नहीं सर, तकलीफ तो है। So we need to understand how to solve the real problems of life. Spiritual life is a serious business. आप लोग बताइए, मृत्यु के बाद क्या चीज आपके साथ ऊपर जाती है? मृत्यु के बाद सिर्फ 3 चीज ऊपर जाती है हमारे साथ। वो है आपका धर्म, आपका कर्म और आपकी भक्ति। बाकी सब यहीं रह जाएगा। आपका डिग्री, आपके माता, आपके पिता, आपका देश, आपका कपड़ा, आपका लत्ता, आपका सब कुछ।
Spiritual life is a serious business, and any sincere seeker of truth can understand the need of a bona fide guru to get enlightenment. When the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna, descended, he accepted Sandimani Muni. राम जी ने भी गुरु को एक्सेप्ट किया, वशिष्ठ मुनि. तो हमारा और आपका क्या कहना? देयर इज अ एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ गुरु और स्पिरिचुअल मास्टर इन लाइफ. अब देखिए, हम लोग एक डिस्कशन करेंगे, इसमें थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स है, सॉरी फॉर दैट. इट इज श्रील प्रभुपाद. So you have to understand how to understand who is a true guru and who is a fake guru. चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं. ये स्पेलिंग मिस्टेक्स चेंज नहीं हुआ ना, SRIL. Okay, right. So please understand that it is very important to understand how to differentiate a genuine guru from a fake guru. कितने लोगों को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है? हाथ ऊपर कर दीजिए. Right? It is very, very important to understand. Now, let us see. We will be seeing some examples और आप लोग खुद ही आंसर करोगे. A reporter ने प्रभुपाद से पूछा, don't you feel that people are suspicious because of their experience with fake gurus? If you went to a quack dentist and he broke your tooth, you might be suspicious about going to another. दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है. प्रभुपाद ने बोला, yes, naturally. If you are cheated, you become suspicious. But this does not mean that if you are cheated once, you will always be cheated. You should find some genuine person in Krishna consciousness and become aware of this signs. अब आप लोग को मैं 3 श्लोक बताऊंगा जिससे आप लोग को पता चलेगा कि भक्ति में आना कोई आसान काम नहीं है. भगवद गीता चैप्टर 7 3rd श्लोका, मनुष्यानाम सहस्रेषु. Out of many millions of people, there may be only one who is interested in spiritual life. Generally, people are interested in ahara, nidra, bhay, maithunascha. So how can we expect to find followers? It is not difficult to notice that people have lost their spiritual interest, and almost all those who are actually interested are cheated by so-called spiritualists. So, अब हम लोग डिस्कस करेंगे some practical points. How did these people find previously who had involved with fake guru? What did they find out? Their spiritual lives in every way was spoiled by fake gurus, which they found out. God helps genuine seekers finding genuine guru. When Parikshit Maharaj was having 7 days, and he actually wanted to get out of this cycle of sansara chakra, immediately Sukdev Goswami appeared. अगर आपके जिंदगी में आपको गुरु नहीं मिल रहा है तो आप समझिए कि आप तैयार नहीं हैं. जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे, परमात्मा आपको एक राइट गुरु के पास भेज देंगे. भगवान सबके हृदय में है. God is within the heart of everyone, and therefore one accepts anyone as guru if they are attracted. They are genuinely seeking something spiritual. Thus they could not be cheated by fake gurus. जिसको असली मोती चाहिए होता है, गहरे पानी में बैठने से असली मोती मिलता है. What should people do when they become suspicious of their experience with fake guru? If you are cheated once, there is a chance that you will always be cheated. Therefore, you should listen to your inner voice. लेकिन अगर चीटिंग हो गई है तो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है. Remember this golden line: God gives, gives and forgives. We get and forget. All those who are being cheated by so-called spiritualists, they should learn to tolerate, and finally Krishna will give them the right guru. Bahunam janmanamante jnanavan mam prapadyate vasudeva sarvamiti sa mahatma sudurlabha. आप लोग एक रूम में बैठे हुए हैं. थोड़ा चारों तरफ रूम को ध्यान से देखिए तो इसमें लाल पर्दे लगे हुए हैं, ऊपर में फैन चल रहा है, सामने प्रोजेक्टर है, बगल में कर्टेन्स है, बगल में टेबल है, साउंड बॉक्स है. टेल मी, इज देयर एनीथिंग इन दिस रूम व्हिच हैज कम बाय चांस? यस और नो? कोई भी रूम इस रूम में है जो बाय चांस आ गया है, ऐसे ही प्रकट हो गया है? यस और नो? ऐसे करके बताइए, यस और नो? No, nothing is by chance. So please understand,
लाइफ इज नॉट बाय चांस। आप लोग जो यहां बैठे हैं, इट इज नॉट बाय चांस। आप लोग के पापा मम्मी दादा परदादा बहुत पायस फैमिली से होंगे, या पिछले जन्म में आपकी कुछ अज्ञात सुकृति होगी, या कुछ तो पुण्य का काम आपने किया होगा, या कोई सत्संग आपको मिला होगा। इसीलिए कृष्ण बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ means rare and sudurlabh means very rare. So how many of you agree that all of you are very rare souls? Please raise your hands. Raise your hands. Thank you very much. हाँ, तो अगर आपको कोई बोल रहा है अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, ये क्या लगा रखा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो क्या, ये दम मारो दम, हरे कृष्णा हरे राम, क्या चल रहा है भाई। मैं भी जब फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जब जाता था ना सेंटर में, तो मेरे दोस्त मुझे बोलते थे ए डॉक्टर सौरभ तू पगला गया है क्या, क्या चल रहा है तेरा। हाँ, आज वही दोस्त जब एलुमनी मीट में मुझसे मिलते हैं, बोलते सौरभ तूने सही काम किया। हम लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, लाइफ में बस फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। मैंने बोला तब तुम लोगों ने बोला, अब मैं बोलूंगा, राइट। एंड देन दे कम विद द प्रॉब्लम्स। हाँ, एक जन ने मुझे बोला शादी के पहले सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे चंद्रमुखी लग रही थी, सर शादी के 2 महीने तक वो सूर्यमुखी लग रही थी। मैंने बोला अभी क्या लगती है, बोली अभी तो ज्वालामुखी है सर, मैं क्या करूं। तो मैंने आधा घंटा उसको काउंसलिंग किया, ज्वालामुखी के ज्वाला को कैसे शांत करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट स्पिरिचुअलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हाँ, तो लोगों का छोड़िए, आप परमात्मा का सुनिए और अपनी इनर वॉइस को सुनिए। Any person who is seriously desirous of achieving real happiness must seek out a bona fide spiritual master and take shelter of him by diksha or initiation. The qualification of a spiritual master is that he must have realized the conclusion of the scriptures. ये सारे वेद, आप लोग मेरे पीछे की ये बुक शेल्फ देख पा रहे हैं, ये जो बुक शेल्फ है आप लोग देख पा रहे हैं, हाथ उठाइए अगर देख पा रहे हैं। इसमें सारे वेद पुराण उपनिषद सब कुछ है। लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं ये सब का जरूरत नहीं है, ये सब एक गाय के समान है, और मैं गाय का एसेंस निकाल रहा हूं। वो गाय का एसेंस है दूध, और कृष्ण इज गोपाल एंड द दूध इज भगवत गीता, और भगवत गीता को चर्न करने से मक्खन निकलता है। एंड व्हाट इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता? चैप्टर 18 66 श्लोका, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर आप ये जान गए कि इस पूरे ब्रह्मांड के कर्ता कृष्ण है और मेरा जीवन का लक्ष्य है कृष्ण तक पहुंचना, तब समझिए कि आप सारे वेद उपनिषद का एसेंस को समझ गए हैं, और उसके लिए गुरु की जरूरत होती है। अब कैसे पता करें असली, मान लीजिए आप लोग गाड़ी से पेट्रोल लेने गए हैं, तो आप लोग असली पेट्रोल लेंगे या नकली पेट्रोल? दिखाइए मुझे। असली पेट्रोल इज 1, नकली पेट्रोल इज 2। मान लीजिए आपको थोड़ा सा हनी लेना है, शहद लेना है, आप लोग असली हनी लेंगे या नकली हनी लेंगे? बताइए। असली। अगर आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिले और दूसरा आपको पैकेज घी मिले जो आर्टिफिशियली फैक्ट्री में बनाया गया है, तो आप लोग शुद्ध वाला घी लेंगे या अशुद्ध वाला लेंगे? राइट। लेकिन जब गुरु की बात आती है, किसी को असली गुरु चाहिए ही नहीं। क्यों लेते हैं लोग गुरु? दिखावा करने के लिए। क्यों लेते हैं लोग गुरु? आसानी से काम होने के लिए। मुझे याद है मेरा एक दोस्त था, उसको नॉनवेज खाने का बहुत आदत था। जब तक वो चिकन नहीं खाता था उसको लगता था मेरा जीवन पूरा नहीं हो रहा है। तो उसने बोला मुझे दीक्षा लेना है सौरभ। मैंने बोला तब तो नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। बोले नहीं, कुछ ऐसा गुरु ढूंढ दो ना जो दीक्षा भी दे दे और नॉनवेज भी ना छूटे। लोगों को हर चीज में शॉर्टकट चाहिए। हाँ, एग्जाम में चीटिंग कर लेंगे। अरे भाई ये एग्जाम में तो चीटिंग कर सकते हो, फाइनल एग्जाम का नाम तो मृत्यु है। क्या मृत्यु में चीटिंग कर लोगे? क्या वहां यमदूत को बता दोगे देखो मेरा नकली गुरु? यमदूत गुरु को भी ले जाएगा, उसके साथ उसका चेला को भी ले जाएगा। Since the guru must transmit the truth of Vedic knowledge perfectly, he plays a crucial role. He should know who guru is and who guru is not. और आजकल के लोग तो भाई चीटियों के तरह हैं। कितने लोगों ने चीटियों को चलते हुए देखा है लाइन में, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। कोई चीटी को ये नहीं पता कि आगे की चीटी कहां जा रही है, बस सब चल रहे हैं, चलती का नाम गाड़ी।
सो गुरु को अच्छी तरह समझ के एक्सपीरियंस टेस्ट करो एंड देन यू शुड गो अहेड। आज फेक गुरु का जमाना है, क्यों? क्योंकि ये कौन सा युग है? कलियुग। कली दोष निधि राजन अस्ति एकत महत गुना। कहते हैं भागवत में कि कलयुग में बहुत सारे जैकल्स, जैकल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? भेड़िए, सियार, छोटे छोटे जानवर जंगल में आवाज कर रहे हैं। अलग अलग टाइप की आवाज आती है, म्याऊ, हू, हे। लेकिन जब शेर दहाड़ता है, वाव, सबकी बोलती बंद हो जाती है। Similarly, in the Bhagavatam, it is told when the sun rises, जुगनुओं का लाइट दिखना बंद हो जाता है। कितने लोगों ने जुगनू का लाइट देखा है? हाथ ऊपर कर लीजिए कभी ना कभी। जब सूरज उगता है क्या जुगनू का लाइट दिखता है? वैसे ही जब असली गुरु दहाड़ता है तो ऐसे सारे नकली गुरुओं का पर्दाफाश हो जाता है। कल मैं पढ़ रहा था डोगा। कितने लोगों ने डोगा का नाम सुना है? हाथ ऊपर कीजिए। डोगा मतलब कुत्ते के साथ योगा। योगा विद अ डॉग इज कॉल्ड डोगा। हाँ, आजकल क्या क्या नया नाटक शुरू हो गया कलयुग में, आई सिंपली डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, एक 10,000 टाइप का योगा, 20,000 टाइप का मेडिटेशन। एक दोस्त को मैंने पूछा तुम क्या मेडिटेट कर रहे हो? बोलता है मेडिटेटिंग ऑन नथिंग। दूसरा बोलता है मेडिटेटिंग ऑन वाटर। तीसरा बोलता है मेडिटेटिंग ऑन एयर। चौथा बोलता है मेडिटेटिंग ऑन सन। अरे भाई ये क्या बना रखा है? देयर हैज टू बी सम सिस्टम ना। मैं अगर कोई भी आंगन में जाके बोलूं मैं इस मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करूंगा, हाँ, सोहनलाल मोहन मेडिकल कॉलेज, सर ये मेडिकल कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है? अरे नहीं है तो क्या है, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पढ़ना। क्या उसका डिग्री वैलिड होगा? बताओ हाँ या ना। लेकिन जब भक्ति की बात होती है, जो तो मौत तो पौत, सर मुझे जो अच्छा लगता है मैं करूंगा। अरे ऐसे करने से क्या गुरु मिल जाएंगे तुमको? चलिए अब आप लोग को बताना है। हाँ, एक एक पॉइंट में आप लोग को बताऊंगा और आप लोग बताइएगा। कैसे बताइएगा मैं आपको बता रहूंगा। यस मतलब ऐसे ऊपर कीजिएगा यस, और नो मतलब ऐसे कीजिएगा। सबको बताइए यस में क्या करना है, यस, और नो में क्या करना है। ओके, तो पहला बताइए ये गुरु असली है या नकली? गुरुजी ट्रेवल्स बाय प्लेन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड मूव्स इन कॉस्टली कार्स। ओके ओके, मैं देख रहा हूं, बाद में बात करूंगा। गुरुजी एसोसिएट्स अरेंजेस मर्सीफुल चरण स्पर्श और टचिंग फीट फॉर ओनली 5 लाख वाला टिकट। लोग लंबे लंबे लाइन में लगे हैं गुरुजी का स्पर्श करने के लिए, चरण स्पर्श। ये क्या है, असली या नकली? ओके, थैंक यू, इंटरेस्टिंग, आई एम लविंग द। तीसरा, गुरुजी कृपालु हैं, कंपैशनेट हैं। ही डज नॉट डिमांड कि उसके बहुत सारे फॉलोअर हो, लेकिन वो सच बात बोलता है। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। चाहे उसको डिसाइपल्स मिले या ना मिले, वो हमेशा सच्चाई के साथ रहता है। ये असली या नकली करके दिखाइए उंगली। वेरी गुड, आई एम लविंग इट, असली गुरु। नेक्स्ट, गुरु इज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव। वो भगवान के बारे में बात करता है और इधर उधर की कोई फालतू बात नहीं कर रहा है। और वो ये नहीं बताता कि संसार में कैसे सुखी रहो, कैसे धन कमाओ, कैसे और बड़ा बंगलो बनाओ, गाड़ी करो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब जो ये सब नहीं बता के असली भगवत ज्ञान और असली भक्ति के बारे में बताता है, वो नकली या असली या नकली? Very good. Next, Guruji teaches that his teachings are meant to take one from the material world to the spiritual world. People who come to him for relief of diseases, he suggests them go to the doctor. आजकल लोग गुरु के पास क्यों आते हैं? बाबा जी कुछ मिलेगा? तो गुरु बोलते क्या चाहिए तुमको? सर मेरी ना बेटी की शादी नहीं हो रही है सर, उसकी शादी करा दो ना। गुरुजी मेरे पेट में ना खाना पचता नहीं है, बहुत गैस निकलता है, गुरुजी मेरा गैस निकालना बंद कर दो ना। तो क्या ये असली गुरु है या नकली गुरु? करके बताइए उंगली। नकली गुरु लोग टाइम पास करते हैं। हाँ, थोड़ा सा ऐश लेंगे, सोना बना देंगे, थोड़ा सा सज धज के आ जाएंगे, थोड़ा सा इधर उधर की बातें करेंगे, हाँ प्राणायाम सिखाएंगे, योग सिखाएंगे, ठीक है शरीर के लिए ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट अ बिजनेस ऑफ द गुरु। योगा इज नॉट सम जिम्नास्टिक्स ऑफ द बॉडी,
Yoga comes from the word yuj, and yuj means to connect. Connect what? Atma and the Paramatma. और ऐसे आजकल आंख मारने वाले गुरु, हाँ, और कुंभ में जाएंगे तो आपको अलग अलग गुरुओं के नाम मिलेंगे। रेडियो गुरु, सोना गुरु, हीरा गुरु, चुटकी वाला गुरु, पीला वाला गुरु, लीला वाला गुरु, शीला वाला गुरु, हाँ, ऑल नकली गुरु, जैसा गुरु वैसा चेला, हो नरक में ठेलम ठेला। नेक्स्ट, अब बताइए, अब थोड़ा टफ क्वेश्चन है, असली या नकली। पॉइंट नंबर 5, गुरुजी हैज अनफैथमेबल इंटेलिजेंस एंड ही टीचेस दैट शास्त्रों को पढ़ना बड़ा भंड है, बेकार है। तुम लोग बस वही सुनो जो मैं बता रहा हूं, मेरे मुंह से सुनो, शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, किताबों की कोई जरूरत नहीं है। अब बताइए, ये असली या नकली? नकली, वेरी गुड। अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? शास्त्र तो बेसिस है, शास्त्र के बिना क्या हो सकता है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर जी, गुरुजी टेल्स भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाओ। वो अपने आप को कभी भगवान नहीं बोलेगा, लेकिन वो अपने आप को भगवान का एक विनम्र सेवक बोलेगा, और दूसरों को भी भगवान के साथ जोड़ना ही उसका काम है। असली या नकली? वेरी गुड, असली गुरु। लास्ट, Guruji in closed room association of 1,000 senior most disciples has revealed his identity. अभी मैं ऐसा गुरु बन के दिखाता हूं आप लोग को, हाँ, ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा, मेरे प्रिय बंधुओं, सबके सामने ये बात मत बोलना, चुपचाप मैं तुमको कुछ दिव्य ज्ञान देने वाला हूं। वो दिव्य ज्ञान ये है कि मैं ही भगवान हूं, और ये बात बाहर किसी को मत बोलना, क्योंकि तुम लोग स्पेशल हो, और ये बात सबको बोलने के लिए है ही नहीं, ये सीक्रेट मंत्र है। हम तुम्हारे कान में बोलेंगे, लेकिन ये मंत्र तुम किसी को मत बोलना। बोलो, असली या नकली? नकली, वेरी गुड। अब आप लोग सीख गए कैसे पता करना है असली और नकली। और थोड़ा डिटेल में जाते हैं ताकि आप लोग को कभी कंफ्यूजन ना हो। एक गुरुजी बोलते हैं, गुरु इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीचिंग्स। मैं यहां आपको ये नहीं बोलने आया हूं कि मैं भगवान हूं। इनफैक्ट द फैक्ट इज दैट सभी भगवान हैं। तुम भी भगवान, ये भी भगवान, और हम लोग सब जैसे जैसे भक्ति में बढ़ेंगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम ही हो भगवान। बोलो, असली या नकली? वेरी गुड। अरे भाई, भगवान को अगर टॉयलेट लगा, उसको बाथरूम जाने की क्या जरूरत है अगर तुम भगवान हो? हाँ? भगवान को दर्द क्यों होता है पेट में? नेक्स्ट, गुरुजी टीचेस ऑन बिहाफ ऑफ गॉड एंड कन्विंसेस पीपल टू लव गॉड। गुरु का काम है बस भगवत भक्ति और भगवत प्रेम, एंड ही रिस्पेक्ट्स एंड ग्लोरीफाइज ऑल द लवर्स ऑफ गॉड। चाहे वो जीसस हो, मोहम्मद हो, गुरु नानक हो, उसका काम है बताना कि परमात्मा एक है, और सब अपने अपने लेवल से परमात्मा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। नकली या असली? असली, वेरी गुड। लास्ट, गुरुजी एनलाइटन्स हिज डिसाइपल्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग बॉर्न। ये थोड़ा टफ है, हाँ, ध्यान से सुनो। Guruji enlightens his disciple the importance of being born in a Brahmana family to be able to grasp the Vedas, which have deep meaning. He is a great reciter of Vedic mantras and he attributes this to Brahmanical birth. अगर तुम बस ब्राह्मण के शरीर में या ब्राह्मण के फैमिली में जन्मे हो, तभी मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, बाकी तो तुम सब शूद्र हो और तुमको मैं टच भी नहीं करूंगा। असली या नकली? Nakli, very good. Thank you very much. All of you have answered it correctly. Who is a genuine guru? He speaks about God, not about how to enjoy the material world. A genuine guru is God's representative, and he speaks about God and nothing else. He teaches the disciple how to go from the material world to the spiritual world. Yoga comes from the word yuj, which means connection with God. God is not for good health, to enhance sense gratification in modern times, but to go back home, back to Godhead. अगर गुरु का ही सेंसेस कंट्रोल में नहीं है तो क्या वे गुरु बन सकता है? अगर उसको खुद ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, मद, मत्सर्य में कंट्रोल नहीं है तो क्या वो दूसरों का गुरु बन सकता है?
Yes or no? This is yes, this is no. No, he cannot. Vacho vegam, manasa vegam, jihva vegam, krodha vegam. जिसको वेगों पे कंट्रोल नहीं है, जिह्वा का वेग, वाचो वेगम बोलने का वेग, वाचो वेगम. A sober person who tolerates the urge to speak, the mind's demands, and the actions of anger, and the urges of the tongue, belly, and genitals. हर मनुष्य के शरीर में तीन चीज एक लाइन में होती है, आपका टंग, आपका पेट और जेनाइटल्स. टंग, बेली एंड जेनाइटल्स आर इन द सेम लाइन. जिसका टंग कंट्रोल में नहीं है उसका पेट भी कंट्रोल में नहीं होगा, जिसका पेट कंट्रोल में नहीं है उसका जेनाइटल्स भी कंट्रोल में नहीं होगा. जेनाइटल्स कंट्रोल में नहीं होना मतलब he will engage in illicit activity. For males, he will be losing semen artificially and he won't be able to have sense control. तो गुरु को तो ये सब चीजों पे फुल 100% कंट्रोल होना चाहिए. ये है स्टोरी हरिदास ठाकुर का. आप लोग को मेरा कर्सर दिख रहा है? अगर कर्सर दिख रहा है हाथ ऊपर कर दीजिए. वेरी गुड. ये हरिदास ठाकुर हैं, वो बैठ के अपने भजन कुटीर में भगवान का जप कर रहे थे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तब एक वैश्या वहां आई और वो कोशिश करने लगी to allure Haridas Thakur. When a beautiful prostitute tried to allure Haridas Thakur, he transformed her into a devotee without falling down from his standard. His divine grace, Bhakti Siddhanta Saraswati, had a lady disciple who wanted to meet her guru privately without her husband. Although she was of the age of the granddaughter, he refused to meet her privately, saying that it was not behaving or befitting a behavior of a sannyasi. Right? भागवत में क्या कहा गया है कि एक साधु के क्या क्या सिम्टम्स होने चाहिए, आप लोग नोट कर लीजिए. व्हाट इज रियल नॉलेज? चैप्टर 13 8 to 12 श्लोका, भगवत गीता 13.8 to 12 are the things which speak about the real knowledge. आमानित्वम अहमित्वम अहिंसा क्षांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मे विनिग्रह. और भागवत में क्या बोला गया है? भागवत कैंटो 3 chapter 25 21st श्लोका, the symptoms of a sadhu are, अगर आप देख रहे हैं कि जिसको आप गुरु चुन रहे हैं उसके अंदर ये क्वालिटीज नहीं है, यानी आपको फिर से डीपली देखने की जरूरत है. Sadhu must be tolerant, he should be kripalu, and he should be friendly to all living entities. उसके कोई दुश्मन नहीं होने चाहिए, अंदर से वो शांत चित्त होना चाहिए, सारे शास्त्रों का एसेंस उसको पता होना चाहिए. Haridas Thakur continued propagating the holy names of Krishna despite being beaten in 21 marketplaces. ये हैं हरिदास ठाकुर और उनको 21 मार्केट प्लेसेस में मारा गया बोल के कि तुम हरि का नाम जाप नहीं करोगे, लेकिन वो करते रहे. और प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप ने अलग अलग तरीके से मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी परमात्मा की सेवा में वो अग्रसर रहे. नाउ असली गुरु जो होता है उसको बस अपना नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है. आप लोगों ने देखा है, आप लोग के कितने लोगों के पेरेंट्स ने गुरु दीक्षा लिया हुआ है? हाथ ऊपर कीजिए. आपके दादा परदादा या पापा मम्मी किसी ने गुरु दीक्षा लिया हुआ है? चलिए, एक या दो हाथ ऊपर हो रहे हैं. कुछ लोग मास में, ओ थैंक यू वेरी मच. कुछ लोग मास में दीक्षा देते हैं, पंडाल प्रोग्राम में 10,000 लोग आते हैं, गुरुजी अंदर से बाहर निकलते हैं और गुरुजी बोलते हैं, मेरे शिष्यों कितने लोगों को मुझसे दीक्षा चाहिए? तो सब लोग हाथ ऊपर करते हैं, गुरुजी मुझे मुझे मुझे. फिर गुरुजी 2 हाथ ऊपर करते बोलते हैं, दीक्षा हो गया तुम लोग सबका. अब बताइए, ये असली दीक्षा है या नकली दीक्षा है? एब्सोल्युटली नकली. हाँ, क्या होने वाला है? जैसा गुरु वैसे चेला, हो नरक में ठेलम ठेला. असली गुरु will not give you a mantra and tell you that you will become God in 6 months. आजकल लोग गुरु लगते हैं अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जैसे लोग एस्ट्रोलॉजर रखते हैं ना,
गुरुजी मुझे ना कोरोना में बहुत लॉस हो गया गुरुजी, मुझे कुछ ऐसा दिव्य मंत्र बताइए जिसको रखने से मैं करोड़ों में कमाऊं गुरुजी। तब गुरुजी क्या बोलते हैं, शिष्य सही समय का प्रतीक्षा करो वत्स, 1 महीने के बाद मैं तुमको एक ऐसा माला दूंगा जिसको तुम गले पे लगाए रखना और इससे तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अच्छा गुरुजी, माला का कितना कॉस्ट होगा? देखो भाई, ये तो तुमको अंतिम दिन तक पहनना है, तो कम से कम 1 लाख रुपया का तो होगा ही। जैसा गुरु वैसा चेला, हो नरक में ठेलम ठेला। The genuine guru is he who has no interest in materialistic life. He is after God and God only. That is one of the tests of a genuine guru. He is absorbed in the absolute truth. He is not interested in followers for popularity and fanfare, but he is interested in helping the souls, purifying their heart, and going back home, back to Godhead. मुंडक उपनिषद में क्या लिखा हुआ है? The genuine guru is well versed in scriptures and Vedic knowledge, and he is completely dependent on God. He needs to know the essence of the scriptures. आप लोग को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। कितने लोग स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ ऊपर कर लीजिए। हमारे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के फाउंडर आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हैं। He was a genuine guru जिसने हजारों लाखों भक्त बनाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनके बारे में कुछ स्टोरीज और रियल इंसिडेंट्स मैं आपको बता देता हूं। एक बार प्रभुपाद एक बड़े मंदिर में क्लास ले रहे थे, तो एक रिपोर्टर आया और बोला, प्रभुपाद आई हैव अ क्वेश्चन। प्रभुपाद ने बोला यस। बोले प्रभुपाद, इतना बड़ा मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? आप तो एक सन्यासी हैं, आपको तो मंदिर की जरूरत नहीं होने चाहिए। प्रभुपाद ने हंस के बोला, मैं तो पेड़ के नीचे भी क्लास दे सकता हूं, लेकिन तुम लोग नहीं आओगे। लोग आजकल पहले मंदिर कितना बड़ा है वो देखते हैं और फिर आके लोगों से सुनते हैं। पीपल डोंट रेस्पेक्ट यू फॉर व्हाट यू आर एंड पीपल रेस्पेक्ट यू फॉर व्हाट यू हैव। मैं आप लोग सबको बहुत ध्यान से देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि आप लोग सब जगे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। आसान नहीं होता सुबह जब सेशन के बाद जगे रहना। प्रभुपाद जी एक जगह क्लास ले रहे थे। प्रभुपाद जी एक जगह क्लास ले रहे थे और भक्तों लोग रात तक बहुत मेहनत किए थे, हरिनाम में गए थे, लेट नाइट हो गया था और सारे भक्तों को झपकियां आ रही थी। आप लोग को पता है झपकियां मतलब क्या? झपकी मतलब क्लास सुनते सुनते ऐसे हो जाना। नींद आती है आप लोग को? आती है तो हाथ ऊपर कीजिए। कभी कभी क्लास में नींद आती है ना? तो प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे और सारे भक्तों को झपकियां आ रही थी, ऐसे सो रहे थे भक्त। पीछे एक फॉरेन रिपोर्टर आया और फॉरेन रिपोर्टर ने बोला, मौका लगा है, मौका देख के चौका मार देते हैं। प्रभुपाद को ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सबकी हालत टाइट हो जाए। तो सब भक्त सो रहे थे, अचानक से उसने बोला, प्रभुपाद। सारे भक्तों की आंख खुल गई और उसने हाथ ऊपर को बोला, आई हैव अ क्वेश्चन। प्रभुपाद ने बोला यस। उसने पूछा, प्रभुपाद आप इतना बड़ा क्लास ले रहे हैं लेकिन आपके सारे भक्त तो सो रहे हैं, ऐसा क्लास देने का क्या फायदा जहां आप क्लास दे रहे हैं और भक्त सो रहे हैं? प्रभुपाद बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए, प्रभुपाद हंसे। प्रभुपाद ने हल्का सा स्माइल किया और प्रभुपाद ने रिपोर्टर को इंग्लिश में आंसर दिया। ध्यान से सुनिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि एक प्योर डिवोटी के लक्षण कैसे होते हैं एंड हाउ कृष्णा पर्सनली गाइड्स हिम इन हिज लाइफ। प्रभुपाद ने हंस के बोला रिपोर्टर से, माय डियर फ्रेंड, even after attending my class in sleep, they have dedicated their lives. You have attended my full class awake. What is your dedication to the movement? हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं, अरे मेरे क्लास को सोते हुए सुन के भी ये लोगों ने अपना जीवन को भगवान के प्रति न्योछावर कर दिया है। जैसे आप लोग देख रहे हैं जो ब्रह्मचारीज हैं चारों तरफ, उन लोगों ने अपना जीवन को न्योछावर किया है। अरे तुम तो मेरा पूरा क्लास जग के सुने हो, तुम्हारा क्या डेडिकेशन है? श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। आप लोग समझिए कि क्या गजब का आंसर दिया प्रभुपाद ने। एक बार प्रभुपाद हीथ्रो एयरपोर्ट में उतरे तो एक रिपोर्टर ने पूछा, प्रभुपाद प्रभुपाद
इतने एज में आपको फॉरेन आने की क्या जरूरत है? लंदन में क्या है प्रभुपाद जो आप लंदन आ गए? यू नो व्हाट प्रभुपाद आंसर्ड? यू वांट टू नो? रेज योर हैंड्स। प्रभुपाद ने बोला सीधे रिपोर्टर को, लंदन इज हेल। क्या बोला प्रभुपाद ने? लंदन इज हेल। अरे इंडिया में तो सूरज के भी दर्शन होते हैं। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नीचे लड़का है, ठीक है, फोन करके उसको बोल दो कि पापा से मिलने के लिए कर रहे हैं। हाँ, हाँ, और एक बार पापा को मेरे नंबर से फोन करके बोल दो कि मैं क्लास ले रहा हूँ, एक मेरा नॉन है। और हाँ, अशोक फोन किया था, तुम भी जाके मिल लो कौन है। हाँ, सॉरी, एक्चुअली वन डिवोटी हैज कम फॉर अ कंसल्टेशन। या हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट? आई फॉरगॉट। या सो प्रभुपाद सेड लंदन इज हेल। और फिर प्रभुपाद ने छोड़ा नहीं उसको। प्रभुपाद ने बोला, अरे इंडिया से तो तुम लोग सब कुछ लेके गए हो, लेकिन जो असली चीज छोड़ के गए हो ना, वो हम देने आए हैं, कुछ लेने नहीं आए हैं दोस्त। राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड हाउ द प्योर डिवोटी एक्ट्स. We need to know the essence of all the scriptures as explained in the Bhagavad Gita. Vedescha sarve rahameva vedya. The essence of the Vedas is to know me. And the essential principle of the teaching of all scriptures is to live according to the principle of Shastras. Once when Srila Prabhupada met two Vedic scholars in Vrindavan, एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन गए और दो बड़े बड़े पंडितों से मिले और प्रभुपाद ने पूछा, क्या आप बता सकते हैं भगवान कौन है? तो वो पंडितों ने बोला, प्रभुपाद जी भगवान कौन है बताना तो बड़ा मुश्किल है। गॉड इज अनडिस्क्राइबेबल। तुम जल्दी से आ जाना, 5 मिनट्स। हाँ, भगवान इज इनडिस्क्राइबेबल, अनफैथमेबल। भगवान है भी और नहीं भी, उनके बारे में हम क्या ही बता सकते हैं। प्रभुपाद हंसे और इस छोटे से बच्चे को प्रभुपाद ने बुलाया, ए इधर आ जाओ। उसको पूछा, हु इज गॉड? छोटे बच्चे ने बोला, कृष्णा इज गॉड। प्रभुपाद ने उसको प्रसाद दिया, बोले गो। दिस इज द वे अ प्योर डिवोटी एक्ट्स। कृष्णा इज वेरी सिंपल। आप लोग गीता में पढ़ेंगे, मैंने 18 अलग अलग एडिशंस पढ़ा है गीता का। भगवत गीता एज इट इज जब मैं पढ़ा, लास्ट में सारे अलग अलग घाट का पानी पीने के बाद एक सिंपल श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कृष्णा इज टेलिंग, जो प्रेम से मेरे को एक पत्रम पुष्पम फूल या पानी देता है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन ये मायावादी और ब्रह्मवादी लोग हर सिंपल चीज को इतना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो है और नहीं भी है, भगवान आसमान है और अमृत तत्व में ये विलीन हो रहा है, यू विल गेट टोटली कंफ्यूज्ड। राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड who is the genuine guru and act accordingly. The real guru is God's representative. He represents the supreme Lord. साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्रे। और यहाँ पे एक डायलॉग है, इसमें मैं डिटेल में नहीं घुसूंगा। इस डायलॉग का ये है कि कभी कभी गुरु में एक्सेप्ट। एक बार प्रभुपाद हीथ्रो एयरपोर्ट से उतरे और उनको लेने के लिए भक्त लोग रोल्स रॉयस में आए थे और प्रभुपाद रोल्स रॉयस में बैठे। तो एक रिपोर्टर ने पूछा, प्रभुपाद, how come you're a sannyasi and you're sitting in Rolls Royce? प्रभुपाद हंस के बोले, what is this Rolls Royce? ये तो एक टीन का डब्बा है। For a pure devotee, even if Vishnu Yan comes and even if the plane from the spiritual world comes, that is befitting for the spiritual master. जब उन्होंने ऐसा बोला, सब भक्तों ने बोला, श्रील प्रभुपाद की जय। So we need to understand, sometimes a guru may use money in Krishna's service. Sometimes the guru may stay in a costly room, but all the purpose is to make devotees into Krishna consciousness, and that's why Prabhupada would say, do the needful. A guru's business is what? Shono shono Nityananda, shono Haridasa, Amara Agya tumi karo prakasha. প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে করো এ ভিক্ষা,
बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा. The only purpose of Guru is to spread the message of Krishna consciousness in every town and village. भारतो भूमिते जन्म होइलो जारा, जन्म सार्थक करी कर परोपकार. The only business of Guru or a representative of Guru is, Muhammad said, I am the messenger of God. Jesus said, I am the son of God. And Krishna says, I am God. Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Partha Dhanurdhara, Tatra Shri Vijaya Bhuti, Dhruvani Tirmatir Mamaha. A guru will clearly say, Krishna is the Supreme Lord and all of us are servants and we need to become servant of God. Prabhupada says, if you want to become God, you are like a dog, G-O-D and D-O-G. So whether a guru, can an American become a guru? Can an African become a guru? जो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ गया है, definitely he can become a guru. The external body doesn't matter. कौन कहाँ जन्म लिया है, क्या हुआ है. Any person who knows the Krishna Tattva, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु होय. For example, अगर एक शेड्यूल्ड एसटी का डॉक्टर है या एक ओपन कास्ट का डॉक्टर है, अगर उसको एमबीबीएस और एमडी मिल गई है तो वो डॉक्टर ही है, राइट? इट डजंट मैटर. सो जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है. So in the last 2 minutes, I will finish the today's session by 9:40. चार ही संप्रदाय या चार बोनाफाइड वेज हैं, और ये चार बोनाफाइड वेज हैं. जैसे अगर मुझे मेडिकल करना है, मुझे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का डिग्री ऑथराइज्ड कॉलेज से करना होगा. अगर आप लोग इंजीनियर हैं तो एआईसीटी कॉलेज से करना होगा. सो देयर आर 4 संप्रदायस: ब्रह्म माधव संप्रदाय, and Lakshmi ji ka sampradaya headed by Ramanujacharya, Lord Shiva sampradaya, Vishnu Swami, and the Kumara sampradaya headed by Nimbarkacharya. These are the bona fide sampradayas. And one who interprets the divine sound, it is irrelevant whether a person is intelligent or not. As soon as he understands the Krishna Tattva, he is actually a guru, right? So these are some of the details of which I will not be going. The main purpose is that Guru tells you who you are, who is God, and what is your relationship with God. This is a very important shloka. Yasya deva para bhaktir yatha deve tatha guru. Only unto those great souls who simultaneously have enough faith in both the Lord and the spiritual master, the imports of Vedic knowledge are automatically revealed. How can I save myself from cheating gurus? जो आपको बता रहा है, राइट, कि आप लोग मीट ईटिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा गैम्बलिंग कर सकते हैं, इलिसिट सेक्स भी कर सकते हैं और भक्ति भी कर सकते हैं. That means it's a cheater guru, because Kali is forbidden or given a permission to stay in pace, like gambling, drinking, prostitution, and animal slaughter, or wherever hoarding of money or gold is there, right? So people think that this is all very difficult, but it is not difficult. Anyone who practices this can understand. A genuine guru is nothing but a representative of God. एक लाल डब्बे में जाके अगर इनलैंड लेटर डाल देते हैं तो वो पहुंचेगा नहीं, लेकिन वो अगर ऑथराइज्ड पोस्ट ऑफिस का स्टैंप बॉक्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाएगा, तभी आपकी चिट्ठी ऊपर पहुंचेगी. तो परंपरा का इंपॉर्टेंस बहुत है. It is important to follow a proper parampara. And who should not approach a guru? अगर आप लोग को material life में interest है, then there is no business in going towards spiritual life. One who wants to know how to end suffering, how to become a true follower, how to love God, he should accept a guru. So with this, we are almost done with today's presentation. And this is a last pointer, how to understand. 3 चीज, एक ट्रायंगल को लाइफ में हमेशा याद रखिए. एक तरफ गुरु है, एक तरफ बोनाफाइड डिसाइपल है, और एक तरफ शास्त्र है. ये 3 चीज से अगर आपकी लाइफ मैचिंग है, देन यू आर राइट. जैसे बलि महाराज को शुक्राचार्य ने गलत एडवाइस दिया था, किसको? कि ये वामन तुम्हारे से सब कुछ ले लेगा, तुम इसको मत बोलो कि तुम उसको 3 पग जमीन दोगे. लेकिन बलि महाराज ने बोला ये तो विष्णु है,
and that's why he disobeyed the orders of Guru, and thus he became surrendered. So I think that's all. We have almost covered the whole topic. Thank you very much. With this, I would love to end today's session. And as all of you know, this is my YouTube channel, Dr. Saurabh Chaudhary, जिसमें मैंने अलग अलग spiritual topics पे बात की है. And this is my Google App Store. Thank you very much for your timing. And over to the organizers and Pankaj Prabhu for the further announcements. Hare Krishna.